Hello guys and welcome back to another fresh episode of your favorite gadget show. Yes, you're watching Gadgets 360 with Technical Guruji और ये एक ऐसा शो है which gives you everything in a nutshell packed very tightly जहाँ पे हम बात करते हैं सारे नए नए अपडेट्स के बारे में, नए नए गैजेट्स के बारे में and of course I answer your questions as well. I've got everything for you in this episode as well guys. मतलब बहुत मजा आने वाला है I'm sure while you watch this because as gadget lovers, it's always a good feeling when we get to know about कि अभी नया क्या होने वाला है, कौन सा फ़ोन नया आया है मार्केट में या फिर आप अपने फ़ोन्स में जो फीचर्स को यूज़ करते हैं उनको कैसे और एनहांस कर सकते हैं. लेट्स सी व्हाट वी हैव इन दिस वीक्स एपिसोड. गाइस, मेरा नाम है गौरव AKA टेक्निकल गुरुजी. जल्दी से आगे बढ़ते हैं, चलिए शुरू करते हैं. Guys, as always, अब तक तो आपको फॉर्मेट याद भी हो गया होगा. The first thing that we do is to just take a quick recap, just to enhance our knowledge in terms of पता तो लगाएं कि क्या हुआ है चारों तरफ in the field of gadgets in this segment, News of the Week. Vivo has launched the V50e powered by the new MediaTek Dimensity 7300 chipset. इसमें एक 50 मेगापिक्सल का मेन रियर कैमरा है and it promises enhanced performance for mid-range users. Oppo ने चाइना में अपना फ्लैगशिप फोन Find X8 Ultra लॉन्च कर दिया है. इसमें Snapdragon 8 Elite SoC है जो परफॉर्मेंस और AI फीचर्स के लिए काफी अच्छा अपग्रेड है. अभी तक ब्रांड ने ये कंफर्म नहीं किया है कि ये स्मार्टफोन इंडिया में लॉन्च होगा या नहीं. Canva has launched its Visual Studio 2.0, introducing new tools like Canva AI for design assistance, Canva Sheets for data visualization, and Canva Code aimed at developers and tech-savvy creators. मेटा ने अपने टीन अकाउंट्स फीचर को फेसबुक और मैसेंजर तक एक्सपैंड कर दिया है. इस अपडेट के साथ यंग यूजर्स के लिए और भी सिक्योर और प्राइवेट एक्सपीरियंस इंश्योर किया गया है ऑन मेटा's प्रोडक्ट्स. Guys, for the first gadget that we have in this episode, I've got the latest iQOO Z10 and this is the latest entry in the Z series of smartphones जो iQOO हमको देता है. And this one feels super special and उसके दो reasons हैं. The reason is the phone is very sleek, doesn't feel like too heavy. At the same time यहाँ पे it packs a huge battery of 7300 mAh. जी हाँ, आई मीन नेवर हर्ड बिफोर इन आर मार्केट्स इससे पहले कि किसी फ़ोन में 7300 mAh की बैटरी हो. सिंपली पुटिंग इन वर्ड्स, ये फ़ोन बहुत लंबा आपको बैटरी बैकअप देगा इन टर्म्स ऑफ गेमिंग या नॉर्मल यूजेज. एट द सेम टाइम द हार्डवेयर इज़ प्रिटी वेल बैलेंस्ड जहाँ पे वी हैव एन अमेजिंग इमर्सिव स्क्रीन, ऑफ कोर्स रनिंग एट हाई रिफ्रेश रेट्स. हमारे पास में Qualcomm Snapdragon 7S Gen 3 प्रोसेसर लगा है. तो एक बार लेट्स हैव अ क्लोजर लुक, डाइव डीप इनटू दिस iQOO Z10 to learn more about this and just to see कि आखिर इस फोन में iQOO ने हमें क्या क्या नए फीचर्स प्रोवाइड किए हैं. iQOO Z10 5G is the latest offering from iQOO, notable for its substantial 7300 mAh battery with 90-watt fast charging support, aiming to provide extended usage without frequent recharging. ये डिवाइस Qualcomm का Snapdragon 7S Gen 3 SoC यूज करता है with up to 12 GB of RAM and up to 256 GB of internal storage. It features a quad-curved AMOLED display with a peak brightness of up to 5000 nits. For photography, the Z10 5G is equipped with a 50 megapixel Sony IMX882 primary sensor with optical image stabilization. ये स्मार्टफोन FunTouchOS 15 पर रन करता है, which is based on Android 15.
So friends, that's all about this new iQOO Z10. इसके साथ में Z10X को भी iQOO ने लॉन्च किया है, and I think it's always a good feeling when I get to know about all these new devices. जब अच्छा लगता है देख के कि कैसे in this budget segment we are getting such interesting smartphones that are packed with good set of specifications, at the end providing good value आप सभी के लिए. तो ये था iQOO Z10. आगे बात करते हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में. स्पीकिंग ऑफ फैक्ट्स, एक चीज जो आप अपने स्मार्टफोन्स में डेली यूज करते हैं, वन सच फीचर इज ब्लूटूथ. जस्ट इमेजिन इफ योर फोन इज विदाउट ब्लूटूथ. आई मीन आप तो ब्लूटूथ ईयरफोन्स भी कनेक्ट नहीं कर पाएंगे. या फिर हम बात करते हैं कनेक्शंस टू आवर कार इन टर्म्स ऑफ यूजिंग द एप्पल कारप्ले और एंड्रॉइड ऑटो. ब्लूटूथ इज quite an essential feature of today's smartphones. And ये जब से मोबाइल फोन्स आए हैं, Bluetooth kind of picked up and this technology was there for all of us to enjoy this connected set of devices. But क्या आपको पता है कि इसका नाम कहाँ से आता है? Well guys, this name comes from a Nordic king. उनका नाम था King Harald Gormson और उनको लोग ब्लूटूथ के नाम से भी जानते थे. एंड उन्होंने यूनिफाई किया था नॉर्वे और डेनमार्क को. And while the technology was being developed, the idea was to unify the devices. तो वहाँ से नाम आता है ब्लूटूथ. इनफैक्ट जो इसका लोगो भी है, इट ऑल्सो गोज बैक इन द नॉर्डिक रीजन. इनफैक्ट जो किंग है उनके इनिशियल्स का भी यहाँ पे एक रोल है. एंड दैट्स हाउ दिस टेक्नोलॉजी गॉट नेम्ड. मतलब हु न्यू कि एक मॉडर्न डे टेक्नोलॉजी जो आज की डेट में बहुत एसेंशियल बन चुकी है, उसका जो नाम है इट कम्स फ्रॉम सच काइंड ऑफ एन हिस्टोरिक इवेंट. और वहाँ से आज हम नाम यूज कर रहे हैं Bluetooth. Did you know this? If yes, then amazing. Turn your Bluetooth on and use it all the day. If no, then next time जब आप Bluetooth को on या off करते हैं, and I'm sure कि आप अपने friends को उसके बारे में बताएंगे. और अगर आपके पास में कुछ ऐसे interesting facts हैं, you can write an email to tg@ndtv.com. Now guys, the next one that I have for you is this phone, और ये है Samsung Galaxy A series का newest member. This is the Galaxy A26 5G. और ये जो फोन है इट काइंड ऑफ ब्रिंग्स इन कुछ ऐसे फीचर्स इस प्राइस ब्रैकेट में जो कि हमको यूजुअली नहीं मिलते हैं देखने को. फॉर एग्जांपल दिस वन इज कमिंग विद द लेटेस्ट एंड्रॉइड 15 जहां पे One UI 7 आपको इसमें मिलता है इन टर्म्स ऑफ सॉफ्टवेयर. एंड सैमसंग इज प्रॉमिसिंग 6 years of OS अपग्रेड्स एंड 6 years of सिक्योरिटी अपग्रेड्स इन दिस फोन. यहाँ पे इट रन्स ऑन Exynos 1380 प्रोसेसर. कुछ AI फीचर्स भी हमको इस फोन में मिल जाते हैं. काइंड ऑफ जो डिजाइन है वो आपको पता है, जो भी नया A सीरीज सैमसंग फॉलो कर रहा है, वी हैव ऑल दिस. लेट्स हैव अ क्लोजर लुक टू अंडरस्टैंड कि आखिर इस फोन में सैमसंग ने ओवरऑल क्या पैकेज हमको प्रोवाइड किया है एंड हाउ एग्जैक्टली दिस वन फिट्स इन द मार्केट. द ऑल न्यू सैमसंग गैलेक्सी A26. Samsung Galaxy A26 5G offers a 6.7-inch Full HD Plus Super AMOLED display. इस डिवाइस में Exynos 1380 SoC आता है, paired with 8GB of RAM and up to 256GB of internal storage, expandable via a micro SD card up to 2TB. इसमें एक ट्रिपल रेयर कैमरा सेटअप मिलता है, इंक्लूडिंग अ 50 मेगापिक्सल मेन सेंसर विद OIS, an 8 megapixel ultra wide lens and a 2 megapixel macro camera. The front camera is 13 megapixels. Samsung Galaxy A26 5G में 5000 mAh की बैटरी आती है with support for 25 watt charging. ये स्मार्टफोन 4 कलर ऑप्शंस में अवेलेबल है: Awesome Black, Awesome Peach, Awesome Mint and Awesome White. The device is priced at rupees 24,999 for the 8GB plus 128GB variant and rupees 27,999 for the 8GB plus 256GB variant. तो फ्रेंड्स, देखा आपने कि कैसा है सैमसंग का ये नया वाला A सीरीज का स्मार्टफोन, द गैलेक्सी A26. आई थिंक अगेन आई एम सेइंग इट्स वेरी इंटरेस्टिंग टू लर्न ऑल अबाउट दीज न्यू प्रोडक्ट्स कमिंग इन, ताकि हमको पता भी रहे एंड वी कैन सी अ ट्रेजेक्टरी दैट विच वे अ ब्रांड इज हेडेड. या हमको क्या वैल्यू मिल रही है आज के मॉडर्न एज स्मार्टफोन्स में, जहाँ पे जो मिड रेंज वाला प्राइस ब्रैकेट है ना, इट इज गेटिंग रियली एक्साइटिंग, जहाँ पे काफ़ी एक अच्छी वैल्यू हमको मिल जाती है. एंड समटाइम्स यू डोंट इवन नीड टू स्पेंड लैक्स
टू गेट अ गुड फोन, ये आपको कुछ हज़ारों में ही मिल सकता है. नाउ दैट ऑल दीज फोन्स आर गेटिंग बेटर एंड बेटर. बट यू नो व्हाट, अभी आपको एक और चीज़ बेटर मिलने वाली है और उसके लिए आपको बस इस ब्रेक का इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि ब्रेक के ठीक बाद मैं आपको देने वाला हूं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टेक टिप एंड आपके सवालों के जवाब. तो कहीं जाना मत. सी यू ऑल आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक. Hello guys, welcome back after the break. You're watching your favorite gadget show. It's Gadget 360 with Technical Guruji, जहाँ पे मेरा नाम है गौरव aka Technical Guruji, in short TG. And अभी टाइम है आपको देने का टिप ऑफ द वीक. एंड दिस टिप इज वेरी क्रूशियल. समटाइम्स जब आपके पास एक फास्ट चार्जर नहीं है, या अगर फास्ट चार्जर है भी तो शायद टाइम इतना ज़्यादा नहीं है और आपको आपके फ़ोन को फटाफट से चार्ज करना है. गाइज द टिप इज कि अगर आप एयरप्लेन मोड को ऑन करते हैं वाइल चार्जिंग, आपको थोड़ी बेहतर स्पीड मिल सकती है. और थोड़ी से मेरा मतलब है थोड़ी ही बेहतर मिलेगी, बट कभी कभी ये क्रूशियल साबित हो सकती है. जस्ट बिकॉज व्हेन यू टर्न ऑन द एयरप्लेन मोड, आपका फ़ोन जो है वो सारे कनेक्शंस को बंद कर देगा. बैकग्राउंड प्रोसेसेस जो हैं वो भी काफ़ी हद तक बंद हो जाएंगी, बिकॉज देयर इज़ नो नेटवर्क कमिंग इन, और आप एक बेटर फास्ट चार्जिंग स्पीड को एंजॉय कर सकते हैं. अगर आपको चाहिए कि आपको फ़ोन यूज़ करना ही नहीं है, यू कैन ऑलवेज स्विच इट ऑफ, ताकि अगर आपके पास में लेट्स से यू हैव 30 मिनट्स टू चार्ज योर फोन, इन 30 मिनट्स यू कैन गेट द मैक्सिमम बैटरी रिचार्ज अगर आपका फ़ोन ऑफ या एयरप्लेन मोड पे है. समटाइम्स हम इसको भूल जाते हैं एंड देन वी डोंट गेट द मैक्सिमम बेनिफिट्स ऑफ चार्जिंग. नेक्स्ट टाइम यू चार्ज योर फोन इन अ हरी, मे बी एयरप्लेन मोड माइट सेव यू. And now it's time for my personal favorite section. This is called Ask TG, a segment where I get to answer all your questions. Let's see the kind of questions we have for this week's episode. iPhone 16e में discounts in the near future. आई डाउट कि हमको ऐसा कुछ मिलेगा ऑफिशियली फ्रॉम एप्पल, ऑफ कोर्स, बिकॉज इट्स अ न्यू रिलीज. बट येस, इफ़ यू लुक एट द अपकमिंग सेल्स जो हमको मिलती हैं अक्सर ऑन द ऑनलाइन ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स, तो वहाँ पे यू माइट गेट एन एक्साइटिंग ऑफर इन टर्म्स ऑफ कि कुछ आपको डिस्काउंट या कार्ड ऑफर्स वगैरह मिल सकते हैं. बट ऑफिशियली फ्रॉम एप्पल अभी एकदम नियर फ्यूचर में आई रियली डाउट, बिकॉज एप्पल यूजुअली अपने प्रोडक्ट्स की जो प्राइसिंग है उसको एक बार जब लॉन्च करता है तो इतना जल्दी डिस्काउंट नहीं देता है. Hello TG, why should Samsung phone lose their value rapidly in resale market? बेसिकली दो तीन इसके फैक्टर्स निकल के आते हैं. वन फैक्टर इज अगेन एज अ ब्रांड ऑल टुगेदर, दैट फॉर एग्जाम्पल एप्पल के प्रोडक्ट्स जो हैं वो यूजुअली अपनी वैल्यू होल्ड करते हैं. सैमसंग समटाइम्स बिकॉज द ब्रांड परसेप्शन इज नॉट एज स्ट्रॉन्ग एज एप्पल, तो वहाँ पे एक डेप्रिसिएशन आपको देखने को मिलता है. एंड सेकेंड थिंग इज यूजुअली अगर हम बात करते हैं सैमसंग प्रोडक्ट्स की, तो ग्लोबली भी और इंडिया में भी जो प्राइसिंग है वो थोड़ा थोड़ा करके कम होनी स्टार्ट हो जाती है. तो इफ़ यू हैव अ फ़ोन दैट यू आर यूजिंग एंड जब आप उसको बेचने जाते हो तो द कंपैरिजन कम्स कि अब ये फ़ोन अब नया कितने का मिलता है, एंड द प्राइस इज डेफिनेटली लोअर देन व्हाट यू हैव पेड. तो दैट्स द रीज़न कि आपको जो रीसेल वैल्यू है वो इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं मिल पाती है. बट स्टिल इट इज़ एट नंबर 2, आई वुड से. इफ नंबर 1 इज एप्पल, नंबर 2 इज डेफिनेटली सैमसंग इन टर्म्स ऑफ रीसेल वैल्यू. Hi Technical Guruji, if you were given a choice, which EV would you drive daily? Okay, so which EV would I drive daily? Quite an interesting question. और again, you might be expecting कि मैं जवाब दूंगा in terms of Mahindra's new EVs, या फिर हो सकता है I might say the Hummer EV or the Cybertruck या whatever. But I'll give a very interesting answer. और for daily drives, one of the cars that I would prefer, इंडिया में वो मिलती नहीं है, but I would love to drive a Fiat 500 electric. Small car, compact car, good for city driving. Has a battery, it's an EV with that iconic shape. मेरे लिए तो I mean that would be my first pick. I think the Ray-Ban Meta glasses are definitely better. Or see, the thing is, you need to look at the entire ecosystem that's running behind. मतलब आपको जो Meta AI के benefits मिलते हैं, the camera is really good on those. Overall जो आपको Ray-Ban की expertise मिलती है in terms of the optics and all the experience of a normal pair of glasses, let's say. तो यहाँ पे दोनों चीज़ें combine हो गई हैं. And I have been using the Ray-Ban Meta glasses for quite a long time now. और मेरे ख्याल से they are really good, and the way they are being updated,
हर कुछ दिनों में एक नया अपडेट हमको मिल जाता है. द फंक्शनैलिटी इज इवन मोर एनहांस्ड विद दैट अपडेट. तो इफ इन केस यू वर टू कंपेयर, I would say the Ray-Ban Meta is a better product altogether. But then again, the other glasses coming in from Oppo या किसी और brand की अगर हम बात करते हैं, it's still kind of in development, let's say. So let's have a market ready product first. It's better for us to compare at that time. So I think one that really shines जो मैंने देखा है, that's quite popular, people have been rating this product quite good altogether, वो आता है Eureka Forbes की तरफ से एक product. It's a portable vacuum cleaner, has good suction power और अपनी कार को अगर आप साफ करना चाहते हैं, I think that would be a good choice. Okay, so guys, that's all from this week's episode of Gadgets 360 with Technical Guruji. Again, at the end, one task for all of you. You can see this email on your screen. It is tg@ndtv.com. Drop in all that you have. आपका कुछ सवाल है, आपको कुछ तारीफें करनी है, if you have any doubts, whatever it is, just drop in all your emails to this address, which is tg@ndtv.com, and stay tuned next week वाले एपिसोड के लिए, because I have got some amazing stuff for you in next week as well. Same time, same place. फिर चाहे आप टीवी पे देखें या आप देख रहे हैं एनडीटीवी के डिजिटल नेटवर्क्स के ऊपर. I'm gonna see you all next week. अभी के लिए इतना ही. Take care and have a good day.